Hello everyone. Welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator. Today we are going to decode 20th and 21st April 2021 the हिंदू न्यूज़पेपर। तो 20 और 21 अप्रैल 2021 का हिंदू न्यूज़पेपर एक ही वीडियो में हम आज डिकोड करने वाले हैं। Let's start with the class. Also before we start this class, as a small announcement for all of you, एक छोटी सी announcement है। You all are aware of UPSC CSE mega subscription offer presented to you by Unacademy. Last date to avail this offer is April 28th. अप्रैल 28 तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। इस ऑफर में आपको एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी का। इफ यू टेक 1 year सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर प्रीलिम्स 2022 दैट विल बी वैलिड till July 31st July 2022 or your prelims 2022 whichever is later. If you take second year plan, that is again valid till prelims 2023 or 31st July 2023 whichever is later. If by any chance prelims gets postponed, then your plan will be valid till your prelims. But if the prelims is conducted beforehand, or for example let's say in June or July, your subscription will be valid till 31st July. अगर prelims पहले भी हो जाता है, subscription 31 जुलाई तक valid रहेगा। और मान लीजिए postpone हो जाता है prelims, जैसे कि last year हुआ था, तो जब तक prelims नहीं हो जाता plan आपका valid रहेगा। And also you can get 10% discount if you use code ARPITA10. ये कोड यूज करके आपको इजीली 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो take your subscription today. I've given you the links in the description box of all the courses that we have launched for all of you. From today, that is 21st April, new batches are starting as well. So make sure that you take your subscription beforehand. जल्दी से अपना subscription ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज से बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और ये कोड यूज करके आपको इजीली 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। On page number 1, we have this small news. Jagan launches crop loan schemes for farmers. So Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy of Andhra Pradesh, he has launched the YSR Zero Interest Crop Loan Scheme. Now basically ये जो स्कीम है ये फार्मर्स को एड फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार की गई है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹65,000 crore to the farmers under various schemes. This particular scheme has been launched. Okay, now under the scheme there is an amount of 1,28.47 crore. It is going to directly credited into the bank accounts of 6.27 lakh farmers. जिन्होंने भी क्रॉप लोन के लिए अप्लाई किया है उनको ये पैसा मिलेगा, ठीक है। एंड ₹1 lakh will be provided during the 2019-20 rabi season. Then it will be repaid right within a stipulated period of time. तो ये जो स्कीम है ये फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। एंड दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो फॉर जीएस पेपर 2। अगर हम बात करें गवर्नेंस की और गवर्नेंस में इन्वॉल्व हुई डिफरेंट प्रैक्टिसेस की, सो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand. Plus also for your GS paper 3 it is important. Okay, agri loans आपके GS paper 3 के लिए important हो जाते हैं। Coming on to the next important article, Russia says it will launch own space station in 2025. तो रशिया की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन 2025 में लॉन्च करने वाले हैं रशिया, ठीक है। So it is planning right now, it is planning to launch its own orbital station in 2025. अभी फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में के तहत काम कर रहा है रशिया, बट रशिया का कहना यह है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद अपने बल पर कुछ करना चाहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। एंड रशिया इज ऑल्सो नाउ प्लानिंग टू वर्क अलोन. इट हैज लॉस्ट इट्स मोनोपोली फॉर मैन्ड फ्लाइट्स टू द आईएसएस लास्ट year after the first successful mission of US company SpaceX. Now what is International Space Station here, जहां से रशिया बाहर निकलना चाहता है, right? Why Russia wants to come out of it? What is this ISS? ISS is, it was launched in 1988. इसमें रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व है, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि जितना भी स्पेस रिसर्च होता है कोलैबोरेटिव फॉर्म में रशिया, यूएस, कनाडा और जापान और ESA इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करता है। एक तरीके का आप बोल सकते हो ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको तैयार किया गया है। वहां से स्पेस के जितने रिसर्च या जितनी मॉनिटरिंग करनी होती है यहीं से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ISS है ये अर्थ को सर्कल करता है रफली हर 93 मिनट्स में और टोटल 15.5 ऑर्बिट्स पर डे ये कंप्लीट करता है। यहाँ से बाहर इंडिविजुअली निकल के रशिया अब अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन 2025 में लॉन्च करने वाला है। इसको
समराइज कर लेते हैं. So Russia is saying it will launch its own space station in 2025 and Russia Space Agency which is Roscosmos, ये आपको याद रखना है, ठीक है. It has said that it plans to launch its own orbital station in 2025 because it considers withdrawing from International Space Station program. Now, ISS was launched in 1998 involving Russia, United States, Canada, Japan, European Space Agency. These are the key pointers about ISS that you have to remember. Coming on to the third important article, NASA Mars helicopter makes first flight on another planet. तो नासा ने सक्सेसफुली अपना एक टाइनी हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजेन्युइटी मार्स पे उसको फ्लाई किया 19 अप्रैल में, ठीक है. ये पहला पावर्ड फ्लाइट लिया है रशिया के नासा के हेलीकॉप्टर ने एक दूसरे प्लैनेट पे, एक दूसरे ग्रह पर. ये जो इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, इसका गोल क्या है कि कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, बट इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू परसेवरेंस साइंस गोल्स. ओके, अब ये परसेवरेंस क्या है? परसेवरेंस को लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में, ठीक है. इसका मिशन था कि मार्स पे एस्ट्रोबायोलॉजी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करना, ठीक है. वहां पर किसी भी तरीके की एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ है उसके साइन को आइडेंटिफाई करके उसको लोगों के सामने लेकर आना, ठीक है. नाउ द रोवर परसिवरेंस रोवर विल कैरेक्टराइज प्लैनेट्स जियोलॉजी, ठीक है, एंड द पास्ट क्लाइमेट एज वेल. पहले किस तरीके का मार्स पे क्लाइमेट था, किस तरीके के रॉक सिस्टम्स है, किस तरीके का सॉइल है, ठीक है. और रेड प्लैनेट इसको क्यों कहा जाता है, उसको उसका गहन अध्ययन करना, ये स्टडी करना इसका मिशन था. नाउ इट इज फ्यूल्ड बाय इलेक्ट्रिकल पावर बाय यूजिंग हीट ऑफ प्लूटोनियम्स रेडियो एक्टिव डिले दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. तो ये परसिवरेंस से बिल्कुल हटके है. इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो है जो मार्स पे भेजा जाएगा, ठीक है, जो मार्स पे भेजा गया है, ठीक है, सक्सेसफुली वहां पर भेजा जा चुका है. और ये नासा की तरफ से एक एफर्ट है, नासा की तरफ से एक पहल है कि कैसे हम किसी भी पावर्ड फ्लाइट को दूसरे प्लैनेट पे, दूसरे ग्रह पे उड़ा सकते हैं, इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना. ओके, coming on to the next important article. Now this has been taken from Ministry of Tourism's website. देखो अपना देश webinars. Ministry of Tourism ने webinar किए हैं देखो अपना देश के नाम से. तो Ministry of Tourism had recently organized webinar on Khajuraho temples of architectural splendor under देखो अपना देश. देखो अपना देश क्या है? एक webinar series है. ये आपको दिखाता है कि भारत कैसे एक rich diversity है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के टैगलाइन के अंडर आती है, ठीक है. यहाँ पर खजुराहो टेम्पल्स आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है, ठीक है. सो खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर है? लोकेशन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है. बहुत ब्यूटीफुल मिडिवल मॉन्यूमेंट्स है हमारे देश में ये, एंड दे वर बिल्ट बाय द चंडेला डायनेस्टी. नाउ द मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड हिंदू एंड जैन टेम्पल्स. ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन से धर्म के टेम्पल्स इसमें इंक्लूडेड है? हिंदू एंड जैन टेम्पल्स. एंड इट इज सिचुएटेड विद इन विंध्या माउंटेन रेंज. These temples got the status of UNESCO's World Heritage Sites in 1986. The temples are famous for Nagar style architectural symbolism. देखो हमारे पास होता है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वेसार्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो जब आप देखोगे एरियाज जो मध्य प्रदेश के आते हैं वहां पर ज्यादातर आप देखोगे नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर प्रिवेल करता है, ठीक है. जो बिल्कुल ही साउथ का एरिया आ जाता है वहां पर आप देखोगे द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और जो ईस्ट एरिया है वहां वेसार स्टाइल आता है, हाइब्रिड स्टाइल. ओके, नाउ पहली बार खजुराहो टेम्पल्स किसने रिपोर्ट किए थे? अबू रिहान अल बिरूनी ने किए थे, ठीक है. और ये एक अरब ट्रैवलर थे हमारे इब्न बतूता, उन्होंने भी इस टेम्पल्स के बारे में काफी उल्लेख किया था अपनी डायरी में. Next important article, Startup India Seed Fund Scheme to support domestic entrepreneurs their business idea, says Piyush Goyal. यहाँ पर seed fund scheme important है. Startup seed fund क्या है? The fund aims to provide financial help to startups for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization. ठीक है. There will be 945 crore corpus. It will be divided over the next 4 years for providing seed funding to eligible startups. जितनी भी eligible startups हैं उनको इनिशियल फाइनेंशियल हेल्प, सीड फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा इस स्कीम के अंदर. नोडल डिपार्टमेंट स्कीम में कौन रहेगा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये आपको याद रखना है, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this was all for today. I hope you enjoyed today's class. उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. Also do not forget to subscribe to Unacademy Plus today because new batches are starting from today and this offer is valid up till April 28th only. Okay? तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आप आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए. On that note, we are wrapping up the session. Thank you everyone.